بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ خالی پیٹ چائے معدے کے لیے زہر ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں، وقت پر خاموش ہونا بھی حکمت ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے قیمتی ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں حکمت سے کیا جاتا ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑ رہے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ اگر بغیر کسی وجہ کے وزن گھٹنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹابولزم خراب ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ روزانہ نہار کو نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر ہاتھوں میں کپ کپی ہو بغیر نمی کے تو سمجھ لو کہ تمہارے اعصاب کمزور ہیں۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ اگر جلد کے زخم دیر سے بھریں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قوت مدافعت کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ ناظرین، جو لوگ رات کو جرابے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگیں تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا میٹابولزم سست ہو گیا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ اگر پیٹ پھول رہا ہو تو جان لو کہ تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر آنکھیں بار بار پھڑکیں تو جان لو تمہارے اعصاب پریشان ہیں۔ اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہیں۔ روزہ صرف روحانی نہیں جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھ لو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ ناظرین، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگیں تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔
नाक की नोक पर अगर दाने निकल आए तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्मोनी तवाज़न खराब हो चुका है। अगर रात को पैरों में जलन होने लगे तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया है। अगर सुबह उठते ही चक्कर आए तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। अगर याददाश्त कमजोर हो तो जान लो तुम्हारा दिमाग सही गिजा नहीं ले रहा। अगर खाने के बाद थकावट हो तो समझ लो कि तुम्हारा हाजमा सुस्त है। जो लोग रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। नाजरीन, अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर हाथों में खिंचाव हो तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है। अगर पेट में गैस बनी रहे तो जान लो तुम्हारा खाना सही से हजम नहीं हो रहा। अगर एड़ियां फटती रहें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर नाक से खून आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। अगर कमर में अकड़न हो तो जान लो कि तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। अगर सर में अक्सर दर्द रहे तो समझो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मुंह में मुस्तकिल सूजन रहे तो जान लो तुम्हारा दिल कमजोर हो सकता है। नाजरीन, अगर उंगलियां सुन हो जाएं तो समझ लो तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर आंखों के नीचे हल्के बन जाएं तो जान लो कि तुम्हारे गुर्दे थक चुके हैं। अगर सुबह दांत खट्टे लगे तो समझ लो कि तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। अगर बाल तेजी से गिरने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन की कमी है। अगर बदन पर रोजाना सुइयां चुभती महसूस हो तो ये जादू की वाज़े अलामत है। अगर बाएं हाथ का नाखून अचानक स्याह होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। नाजरीन, अगर जुबान पर छाले हो तो समझ जाओ कि कमर की हड्डी कमजोर हो रही है। अगर खाली पेट हिचकी आए तो समझ जाओ कि कब्ज होने वाली है। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज ना करें, इससे फटकने की बीमारी लग सकती है। नाजरीन, अगर पेशाब करते वक्त जलन हो तो जान लो कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर हाथों में पसीना आए बगैर नमी के तो समझ लो कि थायराइड खराब है। अगर हड्डियों से कड़ाके की आवाज आए तो जान लो कि जोड़ों की चिकनाहट खत्म हो रही है। अगर चेहरे पर बिला वजह बाल निकल आए तो समझ लो कि हार्मोन्स में खराबी है। नाजरीन, अगर नाक के बाल बार बार झड़ने लगे तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में जिंक की कमी है। अगर सोते हुए मुंह से राल बहे तो समझ लो कि तुम्हारा सांस का निजाम ब्लॉक है। नाजरीन, दूध का फट जाना दौलत आने की निशानी है। लींबू में से रस ना निकले तो ये मुफलसी आने की निशानी है। घर में सफेद कबूतर का आ जाना घर में अच्छे रिश्ते की निशानी है। हाथ से दूध का गिलास गिर जाना घर में खुशियां आने की निशानी है। ख्वाब में गुलाब का फूल देखना शादी की निशानी है। रात को बार बार आंख खुलना दौलतमंद हो जाने की निशानी है। पांव में दर्द होना तकलीफ और मुसीबत आने की निशानी है। पांव के नाखून की शक्ल बिगड़ जाना धोखा खाने की निशानी है। ख्वाब में बारिश देखना बेतहाशा खुशियां हासिल होने की निशानी है। घर में काले कीड़े निकलना घर में आसेब आने की निशानी है। बुखार होना अल्लाह के तुमसे राजी होने की अलामत है। धोखा खाना अल्लाह का तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने की निशानी है। घर में गिद्ध का आना घर में किसी की जल्द मौत होने की निशानी है। अचानक बालों का गिरना घर में जिन्नात के आने की निशानी है। फीका खरबूजा निकल आना भारी नुकसान की निशानी है। हाथ से पानी का गिलास गिरना अकल की निशानी है। खाने के बाद डकार ना आना सेहत की निशानी है। गोश्त खाते वक्त दांत में गोश्त का ना फंसना मुकद्दर के खुल जाने की निशानी है। पानी पीते वक्त छींक आ जाना रिस्क में इजाफे की निशानी है। खाली पेट हिचकी आना सेहत खराब होने की निशानी है। रोटी में से बाल निकलना जादू की निशानी है। दांतों में दर्द उठना कारोबार में बरकत की निशानी है। घर में सांप का निकल आना दौलत आने की निशानी है।
सोते वक्त डर जाना चोट लगने की निशानी है। रोटी का निवाला खाते ही हिचकी लगना बदन में ताकत आने की निशानी है। अचानक टांग में दर्द उठना दोस्त के रूठ जाने की निशानी है। अचानक कान के अंदर खारिश होना खतरे से आगाह की निशानी है। रान पर खारिश होना गैप से मदद मिल जाने की अलामत है। जो लोग ये 5 बातें समझ जाएं वो कभी रुसवा नहीं होते। कभी सोचा कुछ लोग दुनिया की हजूम भरी जिंदगी में भी बावकार रहते हैं। ना रुसवाई ना शर्मिंदगी, ना लोग उनकी इज्जत उछालते हैं और ना वक्त उन्हें तोड़ पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें आने जिंदगी की वो 5 बुनियादी हकीकतें समझ ली हैं जो इंसान अगर एक बार समझ जाए तो ना दुनिया की तनकीद उसे गिरा सकती है, ना हालात उसे कमजोर कर सकते हैं, ना दुश्मनी उसे परेशान कर सकती है। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 दानिशमंदाना बातों की जो इंसान को रुसवाई से बचाती हैं और इज्जत, सुकून और मुकाम अता करती हैं। हर इंसान सिर्फ अपने अमल का जिम्मेदार है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सर लेते हैं या दूसरों पर अपनी नाकामी का इल्जाम डालते हैं, लेकिन दानिशमंद लोग ये जानते हैं कि वो सिर्फ अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। दुनिया में इज्जत भी उसी को मिलती है जो ये समझता है कि मेरे अल्फाज, मेरे फैसले, मेरे रवैये यही मेरी पहचान बनाते हैं। आप किसी और की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो याद रखें ये रुसवाई की इब्तदा है। कुरान में भी है, कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लें। दूसरों की गलतियों पर अफसोस करने की बजाय खुद को बेहतर बनाएं। हर चीज वक्ती है, खुशी भी गम भी। वो लोग वक्त की फितरत को समझ जाते हैं, वो कभी रुसवा नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर ये लम्हा भी गुजर जाएगा। वो ना खुशी में मगरूर होते हैं ना गम में टूटते हैं। वो हर हाल में मुतवाजिन रहते हैं और यही तवाज़ुन उन्हें मुआशरे में बावकार बनाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गम न कर, वक्त एक जैसा नहीं रहता। किसी भी हालत में खुद को मुकम्मल न समझो, जो आज है वो कल नहीं, तो खुद को हालात के साथ मजबूत रखो। खामोशी हमेशा ताकत होती है। नया शोर मचाने वाले को याद नहीं रखती, बल्कि खामोशी से किरदार अदा करने वालों को इज्जत देती है। जो लोग हर मौका पर बोलते नहीं बल्कि सोचते हैं वो रुसवा नहीं होते। सिवा उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो हर बात का जवाब जुबान से देना चाहते हैं, लेकिन खामोश लोग अपनी इज्जत को लफ्जों के शोर से बचा लेते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, खामोशी इल्म की जीनत है। हर बात पर रद्द अमल देना जरूरी नहीं, बाज़ औकात खामोशी सबसे बुलंद जवाब होता है। जिसे सब खुश करने की ख्वाहिश हो वो रुसवा होता है। अगर आप हर किसी को खुश करना चाहते हैं तो याद रखें आप रुसवाई के रास्ते पर हैं। जो लोग हर इंसान को राजी रखने की कोशिश करते हैं वो बिलाकर अपनी इज्जत और सुकून खो देते हैं। अक्लमंद लोग जानते हैं कि मेरी असल जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जात के साथ मुखलिस होना है, दुनिया के साथ नहीं। अपने असूल पर कायम रहो, चाहे दुनिया नाराज हो जाए। असल कामयाबी लोगों की वाह वाह नहीं, अल्लाह की रजा है। मुआफी देना कमजोरी नहीं, असल ताकत है। रुसवाई हमेशा वहां होती है जहां दिल में नफरत पलती है, लेकिन जो मुआफ करना सीख लेते हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। मुआफी देने वाला इंसान न सिर्फ दिलो आज़ाद होता है बल्कि मुआशरे में भी इज्जत पाता है। हजरत अली फरमाते हैं, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम मुआफ कर दो जब तुम बदला लेने की कुदरत हो। अगर दिल से मुआफ कर सको तो दुनिया की रुसवाई तुम्हारे करीब नहीं आती। ये 5 बातें अगर दिलो दिमाग में बिठा ली जाएं तो जिंदगी में इज्जत, वकार और सुकून हमारे साथी बन जाते हैं। अपने अमल के जिम्मेदार बनो, वक्त को पहचानो, खामोशी को इख्तियार करो, हर एक को खुश करने की आदत छोड़ो और मुआफ करना सीखो। ऐसे लोग ना दुनिया के सामने रुसवा होते हैं ना अल्लाह के हजूर शर्मिंदा। जज़ाकल्लाह।